children. Hope all of us are doing good. The topic that we will study today is noun. Think. Read the following sentences and underline the naming words. तो ये जो sentences दिए गए हैं इन्हें read करें और इनमें जो naming word हैं उन्हें underline करें. For example, the first one is Gujarat is a rich state. अब इसमें गुजरात और state ये दोनों क्या हैं? ये मेरे नेमिंग वर्ड्स हैं, तो आप इन्हें अंडरलाइन करें. इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस में भी जो नेमिंग वर्ड्स हैं उन्हें आप अंडरलाइन करें. लेट्स डू दिस. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेटर गिवन इन ईच रो. मतलब अभी आपको लेटर्स दिए गए हैं MKLARP. आपने इन लेटर से बिगिन करते हुए नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग लिखने हैं. लेट्स रीड. A noun is the name of a person, place, animal, thing or human quality or idea or feeling. मतलब किसी भी इंसान, जगह, जानवर या फिर किसी चीज़ का नाम या जो ह्यूमन क्वालिटीज़, आइडियाज़ या फीलिंग्स होते हैं, इन सब के जो नाम हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अलाहाबाद, मोहन, डॉग, चेयर, विजडम, एटसेट्रा. Now let us look at the kinds of noun. Now nouns can be categorized into many types. मतलब noun के कितने अलग अलग type हैं, अब उनके बारे में जानते हैं. First one is the common noun. Now common nouns are the names which are used for any person, place, animal or thing. किसी भी इंसान, जगह, जानवर या चीज़ का जो कोई भी हम नाम यूज़ करते हैं उसे common noun कहते हैं. जैसे कि for example girl, doctor, river, country, etc. Next we have proper noun. Proper nouns are used to name a particular person, place, animal or thing. किसी भी विशेष इंसान, जगह, एनिमल या चीज़ के नाम को proper noun कहते हैं. For example, Kareem, India, Monday, Delhi, etc. Next we have countable noun. Countable nouns are the names of things which can be counted. जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन चीज़ों के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन, मैन, मैंगो, टॉय, एटसेट्रा. नेक्स्ट वी हैव अनकाउंटेबल नाउन. Uncountable nouns are the names of a thing which cannot be counted. जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उन चीज़ों के नाम को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, करेज, ब्यूटी, एटसेट्रा. नेक्स्ट वी हैव कॉन्क्रीट नाउन. Concrete nouns denote a material object which can be experienced through one of the five senses like taste, touch, sight, hearing or smell. मतलब वो वाले मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनके नाम को कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम, सार, नॉइज, म्यूजिक, एटसेट्रा. देन वी हैव abstract noun. The nouns that refer to ideas, feelings or thoughts are known as abstract nouns. किसी भी आइडिया, फीलिंग या थॉट के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, नॉलेज, पीस, रेज. देन वी हैव कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. कोई भी लोगों के, जानवरों के या चीज़ों का जो ग्रुप होता है उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल a bunch of flowers, an army of soldiers, a gang of robbers, etc. Next we have compound noun. A compound noun consists of two or more words which join together to make a single noun. जब दो या दो से ज़्यादा words इकट्ठा जोड़ करके एक single noun बनाते हैं तो वो हमारा compound noun होता है. For example, football, toothpaste, swimming pool, haircut, etc. Now let us look at people and their professions. An actor is a person who acts in a play or a movie. Barber, a person who cuts and styles your hair.
carpenter, a person who makes and repairs wooden objects, doctor, a person who treats ill people, engineer, a person who designs and builds engines and machines, farmer, a person who cultivates crops, journalist, a person who writes for newspapers and magazines, then manager, a person who manages a group of staff, chef, a professional cook, teacher, a person who teaches in a school. तो यहाँ पे क्या है कि लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो जो लोग जैसा काम करते हैं उसके हिसाब से उनके प्रोफेशन में उनको क्या नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पहला अगर हम देखें एक्टर. अब एक्टर कौन है? वो इंसान जो किसी मूवी या प्ले में एक्ट करता है. बार्बर, वो इंसान जो लोगों के बालों को कट करते हैं और स्टाइल करते हैं. इसी तरह से आप बाकी के भी पढ़ सकते हैं. नाउ टेल. गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन यू कैन सी अराउंड यू. आपके आसपास जो आप चीज़ें देखते हैं उनमें से 5 नाउन आप बताएं. लेट्स राइट. गिव कॉमन नाउन फॉर दीज प्रॉपर नाउन्स. अब यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन्स दिए गए हैं, उनके आपने कॉमन नाउन बताने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट द फर्स्ट वन, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे, ये सारे प्रॉपर नाउन्स दिए गए हैं. इनका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? डे. इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस के भी कॉमन नाउन लिखें. नाउ गिव प्रॉपर नाउन्स फॉर दीज कॉमन नाउन्स. अब आपको कॉमन नाउन दिए गए हैं और उनके आपने प्रॉपर नाउन लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट द फर्स्ट वन, योर बेस्ट फ्रेंड, ये कॉमन नाउन है. अब इसका प्रॉपर नाउन जो आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है वो आप लिखें. इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर लिखें. नाउ state whether the underlined nouns are proper, common, abstract, collective or compound. तो इन दिए गए sentences में जो nouns underlined हैं उनको identify करें कि वो proper हैं, common हैं, abstract हैं, collective हैं या फिर compound noun हैं. So I hope children that this chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will now be easy.